thank the Almighty, absolutely the Almighty. I thank my parents for making this day today. Because without them, without the grace of the Almighty, one doesn't get to address an audience of this size at all. It is something called grace. I'm only an instrument. I'm only carrying forward, I don't know whose will. I'm simply an instrument, my friends. The fact that you're here is not my doing. I don't know it's happening. It's happening for the largest good. Therefore, I want to thank the Almighty for enabling this. I do not know what is the design of this nature which is giving me this opportunity. But all I'm going to do is do my best. Do my best to give you all I can, all I have, so that you take it home, to make it higher and bigger, so that one day you also come on the stage like this to say, thank you God for making me an instrument of your whatever desire you have. And you could also say thank you to IIT Roorkee for having made it possible for you. I think that is what you have to do. I wish to thank your director, Dr. Banerjee, because without his vision, I wouldn't have been here. He's the one who invited me. It is always the director's vision which invites individuals. Otherwise, some of them would be taboo. I can't even enter the institution. So I want to really thank Dr. Banerjee for making this happen today. I want to thank Mrs. Jha, Dr. Jha, because it is she who's been corresponding with my office to make this evening possible. I want to thank Dr. Bhushan for his presence here and for also steering this movement. And I want to thank Mrs. Banerjee, who has inspired me the whole morning, the whole afternoon for all the voluntary work she does. The government, this institution doesn't have a director. It has a director plus a director. So this institution has two directors, one in social development, the other running the IIT Roorkee. So friends, members of your staff and my dear boys and girls, there's just plenty to share with you. I'll stick to my timing because I have a train to catch, but I have a reasonable time to connect with you. Let me share my thoughts with you of how I'm going to build my thinking which I have for you. It stems from one invitation I got at Modern School, Vasant Vihar, 5 days ago. This thinking of mine as to what I'm going to share with you is a... मैं हिंदी में बोलूं? Yes, ma'am. 5 दिन हुए मुझे एक स्कूल ने बुलाया, वसंत विहार मॉडर्न स्कूल ने, और मुझे कहा कि मैडम आके बोलो लीडरशिप विद अ कॉन्शियंस, इस पर आके बात करो, लीडरशिप विद अ कॉन्शियंस। तो मैंने कहा कि लीडरशिप विद अ कॉन्शियंस क्या होता है? पहली बार ही मैंने सब्जेक्ट सीखा, लीडरशिप विद अ कॉन्शियंस तो होनी चाहिए, तो लीडरशिप विद अ कॉन्शियंस क्यों बोला गया? तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि कॉन्शियंस क्या होती है, तो कॉन्शियंस का मीनिंग क्या है, कब आती है, कहाँ जाती है। मैंने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और उनसे बात की। वो बात क्या की, वो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच है, वो आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले क्या आता है लीडरशिप विद द कॉन्शियंस, मैं उस फर्स्ट पार्ट को आपके सामने अपने विचार रखूंगी, फिर मैं आपको लीडरशिप विद द कॉन्शियंस पर बात करूंगी अपने टाइम के अनुसार। हाल में 2-3 दिन हुए हिंदुस्तान टाइम्स में बार यूथ सर्वेज आ रहे हैं। क्या आपने पढ़े हैं? किसी ने पढ़े कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो आज भी एक यूथ सर्वे आया है, वो रेगुलरली एक यूथ सर्वे का सीरीज चला रहे हैं और मेरे ख्याल 5, 6, 7, 8 दिन और सर्वे आएंगे। पिछले 3-4 सर्वे में क्या निकला है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक सर्वे निकला कि, और उससे मुझे बड़ी खुशी हुई और एक आशा भी जागी, क्योंकि सर्वे के रिजल्ट मेरे लिए बड़े अच्छे हैं। मेरी थिंकिंग को उन्होंने चेंज भी किया है, क्योंकि सर्वे बड़े पॉजिटिव है। पहली बात, कितने परसेंट ऑफ द यूथ वो यूथ सर्वे खुश रहते हैं? कितने सर्वे परसेंटेज ऑफ द यूथ खुश रहते हैं? 74.6 हिंदुस्तान के यूथ खुश हैं। नंबर 2, बहुत बढ़िया बात, खुश रहते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी खुश रहते। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये एक होप जागती है, हमारे लिए पॉजिटिव होप जागती है कि 74 मतलब तकरीबन 75% मतलब 3 आउट ऑफ 4 हमारे यूथ खुश रहते हैं, दुखी में भी खुश रहते हैं। दूसरी बात और मुझे बड़ी खुशी हुई, 44% माँ बाप की बात सुनते हैं, 44% माँ बाप की बात अभी भी सुनते हैं। दूसरी बात 21%, ये मुझे नहीं पता एयरटेल के एडवर्टाइजमेंट का फायदा है या नहीं है, 21% अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े खुश रहते हैं, उनको फ्रेंड्स बड़े जरूरी है। 10% एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे नेचुरली कॉलेजेस में उतने नहीं यूथ में जाते जितनी अपॉर्चुनिटी आप पढ़ लिख के इम्तिहान पास करके आ गए, हर एक को ना सीट मिलती है, ना इतनी दूर तक आ पाते हैं। सो 10.8% बच्चे कॉलेज से बहुत खुश हैं। और बड़ी चौंकाने वाली एक सर्वे आया कि हमारी यूथ 90% भगवान में विश्वास करती है। ये एक बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी फर्क आती है, क्योंकि अब मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए या मेजॉरिटी को क्या किस तरफ हम ले जा सकते हैं। नास्तिक नहीं है 90% भगवान से में विश्वास करती है। और तकरीबन 50% यूथ जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहती है? सफलता। वो सफलता चाहती, मैं सफल हूं। तो इसका मतलब सफलता की हमें डेफिनेशन करनी बड़ी जरूरी है अपने यूथ के लिए। और 31% यूथ चाहती है मुझे कहीं ना कहीं से जॉब मिले, मुझे जॉब चाहिए। इसका मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन 31% जॉब्स चाहती है। अब आती बात, जब लड़की और लड़का एक दूसरे को ढूंढते हैं, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, जो कि मेरे लिए बड़ा खुशी की बात थी। तकरीबन लड़की और लड़के का समांतर निकला। 20% एक दूसरे में जानते हैं कि क्या इसमें काइंडनेस है, इसमें वो काइंडनेस का मतलब दया भाव है, इसमें दया भाव है। सो दोनों एक दूसरे में देखते हैं ये लड़का में दया है, और वो भी देखता है क्या लड़की में दया है। ये नहीं मुझे मालूम किस पर दया होगी, लेकिन 20% जब शादी करते हैं तो 30% यूथ अभी भी चाहती है कि फैमिली बैकग्राउंड को देख के किया जाए। फैमिली बैकग्राउंड बड़ी कीमती लगती है अभी भी यूथ को, कि फैमिली कैसे है। इसका मतलब है कि फैमिली का हिस्सा शादी मनाना, शादी कराना भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड तो तकरीबन माँ बाप ज्यादा देखते हैं। लड़की लड़का तो अंधाधुंध शादी करना चाहेंगे, लेकिन वो फैमिली बैकग्राउंड अभी भी चलता है। 30% तो नम्र, 20% काइंडनेस और 20% अभी भी लड़का और लड़की देखते हैं कि इसमें इंटेलिजेंस कितनी है, 20%। और 60% लोग कहते हैं कि हम तो अभी भी, अब तो अगर मन चाहे तो हम लव मैरिज ही करना चाहेंगे। ये एक नया दौर निकला। मैं इसी को बिल्ड करके अपनी कॉन्शियस पर आऊंगी, क्योंकि इससे मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है, और इसको स्ट्रिक्ट, दैट मीन्स हम करेक्ट दिशा में जाएंगे। अब आप यूथ हमारी टाइम कैसे बताती है, ये सर्वे क्या बताता है कि समय कैसे बताती है। समय पढ़ना लिखना हट के 35% टाइम जब उसका बचता है, 35% टाइम टेलीविजन पर जाता है। ये हाईएस्ट टाइम है जो हमारी यूथ आज बता रही है, वो है टेलीविजन पे 35% टाइम, फ्रेंड्स के साथ 19%, म्यूजिक सुनने में 16%, पढ़ने में, रीडिंग में, किताब पढ़ने नहीं, इम्तिहान पास करना नहीं, रीडिंग में 8.5%, 8.5%। और स्पोर्ट्स में गैस लगाओगे, कितना? 1, 2, 3, 4, it's 4.2% ओनली। कितना सही निकला, बिल्कुल सही रास्ते पे 4.2, और पढ़ाई में, रीडिंग में, जनरल रीडिंग में 8.5। और बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी खुशी की बात जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि 90% यूथ जो सर्वे में आया है वो स्मोक और ड्रिंक नहीं करता।
क्योंकि वो लड़के बाहर भी हैं। 70% बट हिंदुस्तान का नौजवान कौन सा कम्युनिकेशन यूज करता है? 70% है मोबाइल फोन, SMS और डायरेक्ट पर्सन। दैट मीन्स मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे यूथ के लिए, मैसेजेस के लिए। SMS और मोबाइल फोन, और ज्यादा वो डायरेक्टली भी मिलना चाहते हैं। इसका मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स, मैसेजिंग and speaking on the phone is 70% of the youth is using the mobile and personal relationships, और 10% youth फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10% यूथ, ये छोटा नंबर नहीं है जो हिंदुस्तान का, और उसके बाद आता है ट्विटर। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। 2020 तक, बाय 2020 हमारे देश की एवरेज एज 29 इयर्स होगी। सो इसका मतलब सिर्फ 7 इयर्स दूर आपकी एज मेजॉरिटी में आने वाली है। उसकी कम से कम नहीं, हमारी वर्किंग एज फ्रॉम 29 to 50 विल बी 47 मिलियन। सारा यूरोप मिला लो, अमेरिका मिला लो, ये आप सारा कुछ लैटिन अमेरिका को मिला लो, ये सब देशों को मिला लो, हिंदुस्तान की यूथ पॉपुलेशन उससे ज्यादा होगी इस एज में। ये है आने वाला समय। लेकिन चुनौती वाले टाइम क्या है? चुनौती, चैलेंज क्या आने वाला है? चैलेंज ये आने वाला है कि 5 मिलियन यंग एडल्ट्स हर साल काम के लिए तो उतरते हैं, उनको काम चाहिए। 5 मिलियन यंग एडल्ट्स एंड 15 to 24 आर एंटरिंग आर ट्रूली प्रोडक्टिव वर्कर्स। इसका मतलब है, मैं यहां से जानना चाहती हूं, इतने मिलियन जॉब्स हमको हर साल चाहिए, लेकिन वो है नहीं, मिलेंगे नहीं। अब हमको आगे क्या करना है? अब आती बात कॉन्शियस की। जब उन्होंने कहा कि लीडरशिप और कॉन्शियस, ये मैं आधार बता रही हूं क्योंकि आधार अभी भी देश का बड़ा अच्छा है। बिगड़ा है लेकिन बहुत नहीं बिगड़ा है, ठीक भी है, सुधरा हुआ भी है। हम अगर चाहें इस 450 मिलियन प्लस को एक बहुत अच्छी दिशा की तरफ ले जा सकते हैं, एक बहुत अच्छी लिटरेचर जो सारी दुनिया पे राज कर सकता है। आज मैं समझती हूं सारी दुनिया में राज कर सकता है। दुनिया को इंजीनियर चाहिए, टीचर चाहिए, नर्स चाहिए, मैकेनिक चाहिए, कामकाजी चाहिए। आपको हिंदुस्तान बोलो तो मिलेगा। इतना जबरदस्त उसमें स्कोप है, क्योंकि 450 मिलियन छोटी जगह, छोटा नंबर नहीं है। लेकिन कैसे मिलेगा? कैसा इंसान मिलेगा? मैं जब भी शास्त्री जी का स्लोगन करती थी, जय जवान जय किसान, मैं यहां नहीं रुकती, मैं कहती हूं जय जवान जय किसान जय इंसान। जय इंसान, क्योंकि हम जय इंसान करने लगेंगे। इंसान कौन होता है? वो इंसान जो आत्मा को सुनता है। आत्मा क्या है? ये मैंने रिसर्च की अपने मॉडर्न स्कूल के लिए, तो मेरे लिए मैंने सोचा थेसरस को देखे बिना कि आत्मा क्या होती है। मैंने सोचा अंदर की आवाज, आत्मिक आवाज, छोटी सी आवाज, ऊंची आवाज, अरे आत्मा की आवाज। लेकिन ये नहीं, बहुत कुछ और है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये आत्मा क्या क्या चीजें। ये एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आत्मा है, सबके अंदर है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कोई कह दे कि मेरे मन में सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है तो बता दो, हाथ खड़ा कर दो कि मेरे मन में सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है। जब मैं गलत करने लगता हूं, मेरी आत्मा मुझे बताती है गलत है, और जब मैं अच्छा करता हूं, मेरी आत्मा बड़ी खुश होती है। मैं कूदती हुई जाती हूँ घर में, मम्मी मैंने आज ये किया, और मम्मी मैं फेल हो गई तो शाम तक नहीं आऊंगी, और अगर मैं जीत गई तो अभी आ रही हूँ मम्मी, अभी आ रही हूँ, फोन पे अभी आ रही हूँ, मेरे लिए मिठाई रखो, क्योंकि आत्मा है राइट एंड रॉन्ग की। तो कोई कह दे कि आत्मा नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट। देयर इज अ वॉइस विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। दूसरा है ये इनवर्ड मॉनिटर है, आपको वॉच करती है, ये इनवर्ड मॉनिटर है, इसलिए तो बोलती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन इज इट्स एन इनर मॉनिटर। थर्ड इज इट्स एन इनर आर्बिटर। जब मैं कहती हूँ ये करना चाहिए ही नहीं करना चाहिए, ये ठीक है ये गलत है, तो आर्बिट्रेट कर रही है आपने कि करो या ना करो। ये इनर वॉइस, ये जो कॉन्शियस है, आर्बिट्रेटर भी है। फिर ये सेंसर भी करती है आपको, ये मॉरल सेंसर भी है, सेंस भी करती है, आपको जगाती है, सेंस भी करती है, फील करती है। आप टेक्नोलॉजी में ज्यादा आपको जानते हो कि सेंसर क्या होता है, ये सेंसर भी है। ये एथिकल सेल्फ भी है, एक सेल्फ भी है जो आपको एथिक्स सिखाती है। ये एक अंदर एक इंडिपेंडेंट चीज है,
एक इंडिपेंडेंट इंसान है अंदर जो सेंस करता है, जो एथिकल सेंस बोलता है कि तुम ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे, तुम अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे, तुम पढ़ रहे हो ठीक नहीं पढ़ रहे, तुम धोखा कर रहे हो नहीं कर रहे। ये एथिकल सेंस भी है, ये स्मॉल वॉइस भी है, एक आवाज भी जगाती है आपको, मगर वो छोटी आवाज है। ये गार्डियन है और गुड एंजल भी है। ये गार्डियन का काम भी करती है, गुड एंजल का भी काम करती है। ये सोशल कॉन्शियस भी है, जिसको आज हमने एनएसएस स्टूडेंट्स में सोशल कॉन्शियस को जगाया कि समाज के लिए क्या करोगे। जब हमने कहा एनएसएस स्टूडेंट्स को कि आप अपने अनुसूची और अस्मिता के प्रोग्राम्स और इस स्कूल में जुड़ो, आप किसी तरीके से एनएसएस प्रोजेक्ट बनाओ, हम उसको सोशल कॉन्शियस को अवेयर कर रहे थे कि समाज की तरफ भी आपकी कोई कर्तव्य है। इसको भी सोशल कॉन्शियस कहते हैं। और एक और कॉन्शियस का डेफिनेशन है क्लीन और क्लियर कॉन्शियस। ये कॉन्शियस की डेफिनेशन। अब मैं आना चाहती हूँ, मैंने फिर वही प्रश्न अपने स्टूडेंट्स को बोला जो बैठे हुए थे, आपके लेवल पे थे, आने वाले हैं आपके लेवल पे, एक साल पहले थे आपके, अभी नेक्स्ट में वो भी IIT के ध्यान देंगे और कल अगले साल यहाँ बैठे होंगे कहीं। तो अब मैंने एक निकला कि इन बच्चों पर इम्पैक्ट क्या करता है। इम्पैक्ट सबसे ज्यादा करता है, मैंने आपको बता ही दिया था, पेरेंट्स करते हैं, टेलीविजन करता है, सिनेमा करता है और फ्रेंड्स करता है। ये 4 जिन्हें हैं। कौन 4 आपके ऊपर हावी हैं या आपको इम्पैक्ट करते हैं? माँ बाप सर्वे बता रहा है, टेलीविजन सर्वे बता रहा है, परमात्मा सर्वे बता रहा है, सिनेमा विच मीन्स इवन द टेलीविजन इंक्लूड्स द सिनेमा एंड फ्रेंड्स। ये 5 हैं, पेरेंट्स, टेलीविजन, गॉड, सिनेमा एंड फ्रेंड्स। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि राइट एंड रॉन्ग, मैंने अपने आप से पूछा कि इतनी लीडरशिप हो गई हमारी, ये जब हम कॉन्शियस की बात करें जो मेरे डेफिनेशन है, तो हम सीखते कब हैं? ये हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट मेरे दिमाग में आ रहा था कि कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, तो ये जागते कब है? मेरे दिमाग में आया जागती तब है जब रिटायरमेंट हो जाती है और तब हम गीता पढ़ने लगते हैं, तब हम ढूंढते हैं बड़ी गलतियां हो गई, माँ बाप बच्चे कहना नहीं मान रहे, बीवी छोड़ के जाना चाहती है, बीवी के साथ बनती नहीं है, बच्चे भी कदर नहीं कर रहे हैं, तो हर दोस्त भी नहीं पक्के हैं, गलतियां भी हो चुकी, पैसा भी ज्यादा नहीं है, कोई प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट्स ठीक से की भी नहीं, धोखे करते रहे, बना नहीं। तो ये कॉन्शियस कहाँ थी तब? तो ये मेरे जवाब में आया, हम लोग अपनी कॉन्शियस को पहचानते हैं जब हम गलतियां कर लेते हैं। हम तब अपने आप को जगाते हैं जब गलती हो गई, तब रास्ते ढूंढने जाते हैं कि गलती से बचें कैसे। तो क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है क्योंकि अब यह है सीक्रेट, और यहां पर होगी हमारी चेंज आज से, और ये रुड़की की IIT से चेंज होगी, और ये चेंज का एक प्रोग्राम देने वाली मैं आपको, और ये प्रोग्राम आपके स्कूल के लिए होगा, और ये स्कूल का प्रोग्राम भी आप करेंगे। वो ये प्रोग्राम साथियों, जब आप स्कूल में थे, मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों, आपने मुझे ये तो नहीं कहा लीडरशिप विद हिस्ट्री, मुझे ये सब्जेक्ट तो नहीं दिया आपने लीडरशिप विद हिस्ट्री, तुमने मुझे ये सब्जेक्ट नहीं दिया लीडरशिप विद ज्योग्राफी, तुमने मुझे लीडरशिप विद मैथमेटिक्स, तुमने मुझे लीडरशिप विद कॉन्शियस क्यों दिया? क्या मैंने उनसे पूछा, बच्चों तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, तुम्हारी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस है, कॉन्शियस भी है सब्जेक्ट। अब जरा सोच के जवाब देना, सब्जेक्ट कॉन्शियस है? स्कूलों में था? स्कूल में सब्जेक्ट कॉन्शियस था, हाँ या नहीं? हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, इंग्लिश थी, मैथमेटिक्स थी, कॉन्शियस क्यों नहीं थी? कॉन्शियस एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको बता दी, वो तो सारे सब्जेक्ट्स पर राज करती है, क्योंकि आप तो इसमें नॉलेज डाल रहे हो, इसमें ज्ञान डालते जा रहे हो, इसमें इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हो, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो सब्जेक्ट कहां है? वो सब्जेक्ट कहां है? क्या वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था? बताओ बताओ। और अगर आपने छोटी उम्र में याद नहीं किया, पढ़ा नहीं, 60 साल की उम्र में समझ आओगे क्या? 60 साल की उम्र में वो सब्जेक्ट अब आप पढ़ रहे हो, आधा पचीदा आपको पढ़ना भी नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट हो गया है, इतना पचीदा हो गया है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि आप एक छोटी सी किताब ढूंढते हो, इधर से सोल्यूशन इधर। अगर
जैसे मैथमेटिक्स आपके साथ क्लास 1 से 12 तक चला, जैसे आपके साथ ज्योग्राफी चली, जैसे इंग्लिश चली, जैसे साइंस चली, अगर कॉन्शियस चलती तो बताओ ना क्या होता? क्या होता? एक सब्जेक्ट बढ़े आप क्या होता? आप कई गलतियों से बच जाते, क्योंकि आपके अंदर आवाज जग जाती, आप समझ जाते ये भी मेरा सब्जेक्ट है, आप उसमें आवाज सुनते। मैं ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया दे रही हूं, ये है आंसर टू दी टुडेज यूथ। दिस इज द वे टू बेटर लीडरशिप ऑफ टुमारो। अगर हम चाहते हैं, आप तो चले जाएंगे नौकरियों में, आप क्वालिफाइड हैं, आपको पता है मुझे नौकरी मेरी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी और जनसंख्या हमारी है जो आज राजनीति में है, और आप में से कई आईएएस आईपीएस भी बनने वाले हैं, और फिर आपकी कॉन्शियस को क्या होता है? कॉन्शियस को क्या होता है? तब तो कॉन्शियस है ही नहीं। तो कहेंगे कि इस बात की कॉन्शियस बात करो किरण बेदी, कॉन्शियस तो सब्जेक्ट ही नहीं था मैं तो सब्जेक्ट पास किया है पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, फलाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने जनरल नॉलेज किया, वो तो मेरा टेस्ट ही नहीं हुआ कॉन्शियस, तो मैं टेस्ट में ना पास हुआ ना फेल, वो तो मेरी मर्जी। इसीलिए मनमर्जी है इस देश में, मनमर्जी है क्योंकि इस देश में कॉन्शियस एक सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं। फिर मेरे मन में आया कि कॉन्शियस सब्जेक्ट नहीं है तो कोर्स कौन बनाएगा? अब तो क्लास 1 का कोर्स कैसे बनेगा, क्लास 2 का बनेगा, क्लास 3 का बनेगा, क्लास 4 का, 5 का। जैसे आपने अंग्रेजी की क्लासेस अटेंड की, सीधा ही तो नहीं शेक्सपियर का लिटरेचर क्लास 1 में आ गया था, शेक्सपियर का लिटरेचर 12th में आया या 11th में आया। शेक्सपियर का लिटरेचर पहले तो नहीं आया था, शेक्सपियर पहले तो आया था सिर्फ लोमड़ी और उसकी कहानी, या मंकी एंड द फॉक्स, या क्रो एंड द फॉक्स का आया था। ये तो शेक्सपियर तो आया था बाद में। Which means, what is missing in our education, Mr. Director? What is missing in our course? You're about to go. I just leave this subject because you were. And I would request you to consider this. Please introduce a subject called conscience. How? What is conscience? Because these boys and girls are going to face ethical challenge the moment they enter the corporate world. How will they deal with it? How will they bribe their way through? Or will they fight their way through? How will they deal when an officer asks them for a bribe? How will they deal with it? When their own senior says bend the rules, how will they deal with it? Because they've not learned to deal with it. They don't know there's something called conscience because the conscience has not grown with them. But it's still not late. We need to design now courses called conscience for students in the IITs. What are the challenges they're facing already and what are the challenges they're likely to face then? And we design this as a proper course, which means we start talking about these problems now so that when tomorrow a bribe is asked for them, they'll say, oh, मुझे पता ही था, तूने मांगना ही था, मुझे पता है तुझे क्या करना। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ। अच्छा, तू पढ़ के आया? क्या पढ़ा था? तू दिखा कि चुप करके दे देना काम हो जाएगा? नहीं, ये कहा था तुझे मैं रिकॉर्ड करूं कि तूने क्या करा है, मैं तेरी रिपोर्ट करूं, मैं तेरे खिलाफ लिखूं क्योंकि तू मेरे देश का कोयला खा रहा है, या मेरे देश की गैस खा रहा है, या मेरे देश का पैसा खा रहा है, मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा। What I'm talking about is how do we bring that work ethics? और वर्क एथिक्स क्या है? डिसिप्लिन। ये कॉन्शियस का मामला है। डिसिप्लिन, मॉरल कोशंट, टाइम मैनेजमेंट, फैमिली वैल्यूज, सेल्फ ड्रिवन लीडरशिप, रीडिंग, करेज। उस वक्त करेज ही की तो जरूरत है। आज दुर्गा को आप याद कर रहे हो, दुर्गा को किस लिए याद कर रहे हो? क्या दिखा रही हो दुर्गा क्या दिखा रही है आज? हिम्मत। क्या दुर्गा जैसे और एमए मास्टर्स नहीं थे? दुर्गा ने और आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स पास किए हुए, लेकिन दुर्गा अलग क्यों है? क्योंकि दुर्गा ने बहादुरी छोटे होने से सीखी थी। उसने छोटी उम्र से उसके माँ बाप ने सिखाई थी, उन्होंने भूली। ऐसे ही मुझे क्या पता था कि जब मेरे माँ बाप मुझे टेनिस के चैंपियन बना रहे थे,
और मुझे अकेले सारे हिंदुस्तान में कहते थे जाओ जाके टेनिस खेलो, अकेले बिठा देते थे गाड़ी में कि टिकट कटाओ, चलो अनरिजर्व कंपार्टमेंट बैठ जाओ, अपना रास्ता खुद ढूंढो। मुझे क्या पता था मेरे माँ बाप मुझे 13 साल 14 साल की लड़की बिठाया और भेज दिया अमृतसर से त्रिवेंद्रम तक, इतनी दूर। तब वो खचाखच की गाड़ी होती थी, कोई शताब्दियों से दूरियां नहीं होती थी, तो कोई हवाई जहाज के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उस वक्त मैं रैंक प्लेयर तो थी नहीं जो मुझे हवाई जहाज से दे। तो मैं 3rd क्लास कंपार्टमेंट में अनरिजर्व में वुमेन के डब्बे में बैठ के जाती थी, लेकिन अपने आप को काम चलाती थी। मुझे क्या पता था ये मुझे बहादुरी क्यों सिखा रहा। उस बहादुरी के लेसन्स पर प्रैक्टिकल लेसन्स मेरी उम्र में 14 साल की उम्र में आते थे। और जब मैं 21 साल की उम्र में हुई मैं एशियन टेनिस चैंपियन बन गई। 22 साल की उम्र में मैं IPS में आ गई। मैं जब देखती थी बाकियों को तो मैं देखती थी ये तो बड़े साधारण है, मैं तो एशियन चैंपियन हूँ। तो क्या था, बहुत सेल्फ प्राइड थी, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मैं तो इनसे ज्यादा हूँ। और मैंने लड़कों को तो हरा दिया था टेनिस में, सबको यूनिवर्सिटी अकेडमी में लड़के सब हार गए थे, उन्होंने हार एक्सेप्ट भी कर ली। तो मतलब ये कि ये बहादुरी IIT पास करने के बाद नहीं मिलती, ये अब मिलती है, अब मिलेगी। ये अब कोर्स होगा, 2 साल का कोर्स होना चाहिए, 3 साल का कोर्स, लेकिन कोर्स में करें क्या, बहादुर बनो नहीं। इसके लिए आपको एक वर्कशॉप करनी पड़ेगी और आपको अपनी भी इनसिक्योरिटीज लिखनी पड़ेगी कॉन्फिडेंशियली। मेरी स्वॉट एनालिसिस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या और मेरे थ्रेट्स क्या है, और मेरे पास क्या एथिकल इश्यूज है जो मैं अब सॉल्व करूं। मुझे खतरा ये है कि अगर हमने सॉल्व ना किया तो उत्तराखंड में जो हुआ, साथियों आपने टेलीविजन पे अगर देखा होगा, मैंने उत्तराखंड के लिए यहां तक कहा था कि किसी को तो जेल जाना चाहिए, किसी को जेल जाना चाहिए। वो कौन किसी का है मैं उसकी इज्जत रख रही हूं, उसको नाम नहीं ले रही, किसी को जेल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक फेलियर, उत्तराखंड एक का जो नुकसान हुआ है, इट वॉज अ प्रशासनिक फेलियर। क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन 35 साल कर चुकी हूं, मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। मैंने एशियन गेम्स को पूरा प्लान किया था, मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। यू आस्क द डायरेक्टर, जब तक आप सभी को मिलके इफेक्टिव टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन नहीं करो, प्लान नहीं करो, एनविजन नहीं करो, फोरसाइट नहीं करो, फॉलो अप नहीं करो, और आप प्रिडिक्ट नहीं करो, आप प्रिपेयर नहीं करो, लोगों को ना जोड़ो, फेलियर की पूरी रेसिपी है। ना करो तो फेल, करो तो पास। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उत्तराखंड में was a 100 out of 100 एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। क्यों? क्योंकि किसी ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, किसी ने प्लान नहीं किया, किसी ने जो एजेंसीज कंसर्न होनी चाहिए थी वो नहीं किया। अब मुझे ये बताइए किन्होंने नहीं किया? आप जैसे लड़के और लड़कियों ने नहीं किया। आप जैसे लड़कियां और लड़के तो ही है, डेप्यूटी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, आप जैसे तो है। आप में से कई लोग पास होके IPS IAS और उत्तराखंड स्टेट सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज में आते हैं। आपने काम नहीं किया क्योंकि आप डरपोक थे। आपने डरपोकी की वजह से अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। अगर आप निभाते होते, आप लिख के देते 6 बारी कि यहाँ पर गलत अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है रिवर के बेड पे, ये मैं अलाउ नहीं कर सकता, इसको हटवाओ। यही होता ना कि दुर्गा जैसे आपको निकाल देते, सस्पेंड होते। क्या एक भी कोई सस्पेंड हुआ उत्तराखंड में पिछले कई सालों में? इसलिए क्या एक भी? क्या वो पास नहीं, वो पढ़ा नहीं था क्या? इसलिए क्योंकि उसके पास कॉन्शियस नहीं थी। कॉन्शियस है ही नहीं, आत्मा ने आवाज ही नहीं दी, अरे बोलो लोग मर जाएंगे। और वहां पर ये ईमानदारी बेईमानी का काम हो रहा है, बोलो। उसने दबा दिया और कहा बेईमानी है ना, ले जाकर नहीं। यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी कमियां क्या क्या है, मेरी इनसिक्योरिटीज क्या क्या है। अगर हमने नहीं किया, मेरी बारी ये है, आप उसी ग्रुप को ज्वाइन करने वाले साथियों, ये आप सब उसको ज्वाइन करने वाले। मैं आपको बता दूं, ये मैं प्रोडिक्ट कर रही हूं। आप में से कितने दुर्गा बनेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन नई दुर्गा कितने बनेंगे ये मुझे मालूम। क्योंकि डर के मारे, कॉन्शियस को दबाने से, पीयर प्रेशर के आने से आप चुप रहेंगे, आप अपनी कॉन्शियस को दबा देंगे, आप चैलेंज नहीं करेंगे एक मीटिंग में। मुझे याद है, मैं एक यंग ऑफिसर एज DCP ट्रैफिक होती थी,
दिल्ली का सारा ट्रैफिक का मेरे पास जिम्मेवारी थी। मैं यंगेस्ट ऑफिसर होती थी, राजीव गांधी उसको चेयर करते थे उन दिनों में एज चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन। ट्रैफिक मामले में मेरे से बेटर कोई नहीं था, क्योंकि मैं काम बहुत अच्छी तरह जानती थी, रोज डट के करती थी। मीटिंग में वो ट्रैफिक के बारे में अगर कोई निर्णय ऐसा लेता था जो मैं समझती थी कि ये ट्रैफिक के मामले, ट्रैफिक की पॉलिसी के खिलाफ है, या ये हमें सूट नहीं करता, ये इनको मालूम नहीं है, ये गलत हो जाएगा, मैं छोड़ती नहीं थी। मैं खड़े होकर कहती थी, सर मुझे बताना है आपको, और मैं चाहती हूँ रिकॉर्ड करो जो मैं कह रही हूँ। ये ट्रैफिक का ये वाला जो आप डिसीजन ले रहे हो, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स, आई वांट दिस टू बी ऑन रिकॉर्ड। तो जब वो मैं कहूँ रिकॉर्ड